ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਛੇਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਬੇਅੰਤ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ ਜੀ। ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ 52 ਰਾਜੇ ਕੈਦੀ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੱਲਾ ਫੜ ਲਵੇਗਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ 52 ਕਲੀਆਂ ਵਾਲਾ 52 ਲੜੀਆਂ ਵਾਲਾ ਚੋਲਾ ਸਮਾਇਆ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲੜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚੋਲੇ ਦੀ ਫੜ ਕੇ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਉਸ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਪਾਵਨ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਹਾੜਾ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਹੋਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ 52 ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕੈਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਛੁਡਾਇਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਬਕ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜ ਲਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਲੜ ਫੜ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਕੈਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਵੀ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਾਲਾ ਫੜਾਂਗੇ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਲੜੀਵਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਹੈ ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਦੇਗ ਅਤੇ ਤੇਗ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਗ ਚਲਾਈ, ਤੇਗ ਵਾਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਗਾਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੇਗਾਂ ਵਾਹੀਆਂ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਦੇਗ ਅਤੇ ਤੇਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਦਾ ਫਤਿਹ ਰਵੇ। ਭਾਵ ਦੇਗ ਅਤੇ ਤੇਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਦਾ ਹੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਕੜ ਹੈ ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਦੇਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਕੜ ਢਿੱਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਖੁਆਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਤੇਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਪਕੜ ਢਿੱਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਪਾਨ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਾਰਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਜੇ ਸਾਡੀ ਪਕੜ ਢਿੱਲੀ ਹੈ। ਦੇਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਨਿਆਮਤ ਹੈ। ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਬਸੰਤ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਕਿ ਧਰਤੀ ਦੇਗ ਮਿਲੈ
एक वेरा भाग तेरा भंडारी, कि जिहड़ी सारी धरती है वो एक अकाल पुरख परमात्मा का देगा है, तो अकाल पुरख परमात्मा इसका भंडारी है। जदों असी किसी के घर लंगर छकण जाने हाँ, जां तुसीं सानू जां किसी नूं भी गुरु के प्यार वाले नूं, कथावाचक कीर्तनीय सेवादार नूं लंगर छकाउण दे वास्ते, सेवा करन दे वास्ते घर बुलाउंदे हो, तो वो अरदास दे विच एक पंक्ति जरूर बोलदा है कि अन्न पाणी गुरु का, टहल पाणी सिखां सेवकां दी, थाएं पाउणी जां लेखे लाउणी। उसका भाव है कि असीं अन्न दे मालक नहीं हाँ, अन्न देण वाला गुरु है, अकाल पुरख परमात्मा है। सानू तो गुरु ने कृपा की है, एक सेवा का मौका दिता है कि असीं गुरु के दर ते गुरु के प्यारियां दी, गुरु की संगतां दी हथीं सेवा टहल कमा के गुरु पातशाह जी दीयां असीसां लै सकीए। इसलिए अन्न दे उत्ते किसी का अधिकार नहीं, पर सानू उत्ते परमात्मा ने कृपा की, गुरु नानक पातशाह जी ने, कि सानू देग की सेवा संभालण का सुभागा समा बख्शिया है। तो देग जिहड़ी है उस अकाल पुरख परमात्मा की प्रतिपालना का भी संकेत है कि वो सारी सृष्टि का प्रतिपालक है। तो उस दे नाल सारे जीआं की आमद तो पहला, भाव साडे जन्म तो पहला परमात्मा ने साडे वास्ते अन्न का प्रबंध भी किया होया है। पातशाह जी की पावन बाणी का फरमान है, पहलों देता रिजक समाहा, पिछों देता जंत उपाहा। पहला तू साडे वास्ते रिजक पैदा किया, फिर सानू संसार दे उत्ते जन्म दिता। ते देग जिहड़ी है वो साडा धर्म भी है, खाना पीना पवित्र भी साडा तां ही है जे असीं देग दे गुरु के सिद्धांत के अनुसारी हो के लंगर दे विच विचरांगे। पातशाह जी पावन बाणी के अंदर कृपा करदे न, खाना पीना पवित्र है, दितोन रिजक संभाहे। असल भुख जिहड़ी है साडी वो केवल अन्न तक ही सीमित नहीं है, अन्न दे नाल नाल परमात्मा दे भजन दी भी है। ते सरीरक लोड़ पूरी करन वास्ते अन्न है, आत्मिक लोड़ पूरी करन दे वास्ते नाम भोजन है। ये दोनों चीज़ां साडे जीवन दे वास्ते जरूरी है। जे भजन नहीं करांगे तो अन्न खा खा के फिट जावांगे, तो जे अन्न नहीं खावांगे तो भजन करदिआं भुखे भी मर जावांगे। दोनों चीज़ां सानू गुरु नानक पातशाह जी ने बराबर दित्तियां हन। पिछे आपां पंक्तियां पढ़ के आए हाँ कि भूखे भगत न कीजै, जय माला अपनी लीजै। भुखे पेट परमात्मा की भगती भी नहीं हो सकती। इसलिए सानू अकाल पुरख परमात्मा का भजन भी करना चाहिए है, तो सानू भोजन भी करना जरूरी है। वर्त रखने भी सिख धर्म दे विच मना हन। किसी भी तरह का वर्त जिहड़ा है भोजन तो वो सिक्खी दे विच प्रवान नहीं है, क्योंकि पावन बाणी का फरमान है, अन्नै बिना ना होए सुकाल। अन्न तो बिना साडी तृप्ति हो ही नहीं सकती। तो अन्न दे नाल नाल परमात्मा का नाम जपना भी सिख दा धर्म है। जपीए नाम जपीए अन्न। परमात्मा की बंदगी नाम जप के भी करनी है, तो लंगर प्रशादे भोजन की वडियाई करके उसका शुकराना करके भी करनी है, क्योंकि वो भी अकाल पुरख परमात्मा की ही सानू देन है। सतगुरु पातशाह महाराज जी ने कृपा की, सानू जिथे लंगर दे नाल जोड़िया उथे नाम दे लंगर दे नाल भी जोड़िया है। पावन बाणी दे अंदर जदों असीं भगत सत्ता जी ते भाई सत्ता ते बलवंडा जी की वार पढ़ते हाँ रामकली राग दे अंदर, ते उन्होंने लिखा है कि लंगर चले गुर शब्द हर, कि लंगर जिथे भोजन का चलता है उत्थे गुरु के शब्द का लंगर भी गुरु दर दे उत्ते लगातार चलता है। तो लंगर जिहड़ा है ये साडे वास्ते धन गुरु नानक पातशाह जी ने इसलिए भी जरूरी किया है कि असीं गृहस्थी होईए। जिहड़ा मनुख गृहस्थी होवेगा उसनूं किरत करन दी भी जिहड़ी है मन के अंदर सोच फुरेगी। तो लंगर जिहड़ा है वो किरत का भी लिखायक है। जे किरत नहीं करांगे, अज किसी तो 20, 50, 100 लैके असीं लंगर चलाता,
ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੈਤਾ रोज़ सानू कोई मंगिया भी पैसे नहीं देगा, तो जे साडी किरत नहीं होगी तो साडा लंगर भी जिहड़ा है एक दिन वो बंद हो जाएगा, देग भी जिहड़ी है वो मस्तानी हो जाएगी। इसलिए देग जिहड़ी है जिथे गुरु घर के अंदर भोजन के वास्ते पेट भरन के वास्ते भी साडी लिखायक है, उत्थे किरत भी साडी लिखायक है कि असीं किरती होवांगे तां ही साडे घरां दे अंदर लंगर चल सकता है। तो जे गृहस्थी होवांगे तो असीं आए गए की सेवा भी कर सकते हाँ। जिहड़ा मंगिया भी है ना वो भी गृहस्थियां दे घरे तो ही मिलता है। कदे किसी भिखारी नूं तुसीं जंगलां दे विच मंगण जांदा नहीं देखोगे, जां पहाड़ां दीआं खुंदरां दे विच जांदा नहीं देखोगे, क्योंकि उत्थे जिहड़े बैठे आ वो तो आप भुखे बैठे आ, वो आप फिर उन्हीं के घर मंगण जाई, फिर उन्हां गृहस्थियां दे घर ही मंगण जांदे आ जिन्हां नूं निंददे फिरदे आ कि गृहस्थी जीवन बेकार है, गृहस्थी जीवन माड़ा है, इस दे नाल पार उतारा नहीं हो सकता। वो फिर जिहड़े जंगलों के विच खुंदरां दे विच रहण वाले हन मुड़ के उन्हां गृहस्थियां दे घरां दे विच ही वो मंगण आउंदे हन। इसलिए लंगर जिहड़ा है वो केवल भोजन तक ही पेट भरन तक ही सीमित नहीं है, वो साडे वास्ते किरत दा भी लिखायक है, गृहस्थी जीवन दा भी लिखायक है। तो दूजा जिथे गुरु का लंगर होवेगा, जिथे गुरुद्वारा होवेगा उत्थे लंगर भी होवेगा, तो लंगर दे विचों सानू सेवा भावना की भी दात प्राप्त होती है। जिथे लंगर लगेगा उत्थे फर्श भी साफ करन दी सेवा होवेगी, भांडे धोण दी सेवा होवेगी, झाड़ू फेरन दी सेवा होवेगी, बालन इकट्ठा करन दी सेवा होवेगी। अज भावें असीं सिलेंडरां दे नाल कार चलाउने हाँ, पर पहलां लंगर जिहड़ा है लकड़ां दे नाल चलाया जांदा सी, अग जिहड़ी है लकड़ां दे नाल बाली जांदी सी, ते उन्हां लकड़ां नूं भी सवार के लंगर की भट्ठी तक पहुँचाउण दा जिहड़ा कार्य है वो भी सेवा है। दालां साफ करनियां पैंदियां हन, चुगणियां पैंदियां हन, वो भी गुरु के दर दे उत्ते सेवा है। सब्जियां कटणियां, सब्जियां चीरनियां, आटा गुन्नना, प्रशादे पकाउणे, पंगतां लगा के टाट पट्टी विछा के संगतां दे बैठण का इंतजाम करना, उन्होंने बर्तन वरताउने, लंगर वरताउंदियां कहना प्रशादा वाहिगुरू, दाल वाहिगुरू, अचार वाहिगुरू, जो भी चीज़ां लंगर दे विच वरताईयां जाण उत्थे नाल असीं वाहिगुरू वाहिगुरू शब्द बोलीदा है। जिथे सानू सेवा मिलती है, सेवा दे नाल लंगर दे विचों परमात्मा की भगती करन दा भी जज्बा पैदा हुंदा है। सेवा करदिआं सानू परमात्मा का नाम भी याद आउंदा है। जदों कहने आ कि प्रशादा वाहिगुरू, दाला वाहिगुरू, जल वाहिगुरू, तो उस वेले असीं नाम जप भी रहे हुंदे हाँ, ते नाल नाल ये भी दर्शा रहे हुंदे हाँ कि ये लंगर साडा नहीं है, ये लंगर उस वाहिगुरू दा है। इसलिए देग दे उत्ते फतेह भी साडी जरूरी है। देग दे अंदर जे फतेह होवेगी, देग दे उत्ते साडी पकड़ होवेगी, तो लंगर साडे कदे भी मस्ताने नहीं होणगे। सदा ही गुरु के लंगर जिहड़े हन वो चलते रहणगे, ते सानू गुरु दीआं असीसां जिहड़ियां हन वो प्राप्त होंदियां रहणगीआं। नाल देग दे लिखिया आया शब्द है देग, तेग, फतेह। तेग भी साडी कौम दे वास्ते जरूरी है, साडे शरीर का एक अनिखड़वां अंग है। जे लंगर साडे जीवन सिद्धांतां दा अनिखड़वां अंग है कि जिथे गुरु घर है, जिथे सिख है, उत्थे लंगर जरूरी है, उत्थे सिख दे नाल नाल सिख दे कोल किरपान होनी, तेग होनी भी जरूरी है। पिछे असी तेग दी भी विचार करके आए हाँ। जिन्हां ने तेगां बाहियां गुरु के अस्थानां दे वास्ते, गुरुद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां, तेग वाह के जंगां करके, उत्थे तेग जिहड़ी है साडे वास्ते उस अकाल पुरख परमात्मा की शक्ति का भी प्रतीक है। जदों अरदास की आरंभता होंदी है तो असीं इत्थों शुरू करते हैं, प्रथम भगौती सिमरकै गुरु नानक लई ध्याए। सब तो पहला असीं भगौती भाव किरपान, तेग, अकाल पुरख परमात्मा की शक्ति जिहड़ी है उसे नूं अपने पहला ध्याउने आ। गुरु साहिबानां तो पहला भी उस अकाल पुरख परमात्मा नूं शक्ति के रूप दे विच असीं
याद करते हाँ। तो जिहड़ी तेग है वो केवल ये नहीं कि साडे हाथ दे विच शास्त्र आ गया तो असीं किसी पासे भी उसनूं चलाउणा शुरू कर दईए, किसी निहत्थे ते भी किसी मजलूम दे उत्ते भी वरत लईए। नहीं, ये सिੱਖੀ सिद्धांत नहीं है। सिੱਖੀ सिद्धांत ये है कि जदों साडे कोल सारे हीले खत्म हो जाण, साडे कोल सारे रस्ते बंद हो जाण, फिर जिहड़ा है असीं अपनी तेग नूं अपनी किरपान नूं हथ पाउणा है। वाह लगदी तक असीं बिना शस्त्र चलाए ही कारज नूं जिहड़ा है वो संपूर्ण करना है। चूंकार अज हमा हील ते दर गुजश्त, हलाल अस्त बुरदन व शमशीर दस्त। जदों कोई हीला ना बचे, कोई रास्ता ना बचे, फिर जिहड़ा है उसी जाके तलवार नूं किरपान नूं तेग नूं हथ पाउणा है। तो जिहड़ी तेग है ये अपने आप दे विच बहुत उपयोगी वस्तु है। ये आत्म रखिया का भी साधन है। जे साडे ते कोई हल्ला करदा, कुछ दिन पहलां आप जी ने एक वीडियो देखी होवेगी, दरबार साहब के रागी सिंघां ने भाई महावीर सिंह जी वो कीर्तन करके दरबार साहब तो अपने घर आ रहे सन, तो उन्हां दी कार दे उत्ते कुछ शरारती लोगों ने हमला किया, तो उन्होंने अपनी किरपान कढ़ के उन्होंने भजाया। जे कोल सी तो वो अपनी जान भी बचा गए, अपना नुकसान होने तो भी बचा गए। तो जे किरपान ही कोल ना होंदी तो हो सकता वो जिस तरीके दे नाल उन्हां दी गड्डी ते हमला कर रहे सन उन्हां दे शरीर नूं भी नुकसान पहुँचाउंदे। इसलिए जिहड़ी किरपान है, तेग है, ये साडी आत्म रखिया का भी लिखायक है। आत्म रखिया दी भी जिहड़ी है वो साडी चिन्ह है। ते नाल ही नाल जिहड़ी ये सानू ये भी दर्शाउंदी है कि सिख जिहड़ा है शास्त्र धाड़ी होके भी अहिंसावादी हो सकता है। अहिंसावादी होना ये नहीं कि असीं कायर बन के जीवन बतीत करना है। अहिंसा वो है कि साडे कोल ताकत है, साडे हथ दे विच शस्त्र है, पर असीं उसनूं किसी निहत्थे ते नहीं चलाउणा, किसी मजलूम ते नहीं चलाउणा। ते जे किसी दे जुल्म हो रहा है तो फिर जे शस्त्र लैके सानू उस जुल्म नूं रोकण दा मौका मिले तो वह भी एक अहिंसा है कि असीं किसी का नुकसान होने तो, किसी के उत्ते जुल्म होने तो उसनूं बचाया है। तो जे असीं ये कहीए कि नहीं जी मेरे मूँह ते एक चपेड़ तू मारी है तो मेरे दूजे पासे भी मार दे, मैं तेरे उत्ते हमला नहीं करना, तो फिर साडा वो जीवन भी कादा है जे नाल साडी पत लिथ जावे। जे साडी इज्जत ही नहीं बची फिर साडी वो अहिंसा भी किस कारज दी है कि असीं अपनी पत ही नहीं बचा सके। साडे सामने कोई साडी धी भैन नूं चुक के लिजा रहा है जां कोई उसकी बेइज्जती करन दा यतन कर रहा है तो असीं कहांगे नहीं जी असीं उसनूं कुटना मारना नहीं, ये अहिंसा हो जाएगी। ये अहिंसा नहीं, ये कायरता है। अहिंसा वो है कि साडे कोल ताकत हुंदियां होयां भी असीं उसकी नजायज़ वरतों नहीं करनी। इसलिए सानू सतगुरु पातशाह महाराज जी ने देग दे नाल नाल तेग दी भी दात बख्शिश की है। तो नाल ये भी अरदास दे विच असीं मंग रहे हाँ कि पातशाह जी खालसे दी देग तेग फतेह होवे। खालसे दा जन्म जिहड़ा है वो तेग दे विचों ही होया, खंडे बाटे दी धार दे विचों ही साडा जन्म होया है खालसे दा। जदों कलगीधर पातशाह जी ने खंडे बाटे की पौल दिती सी तो ये पहलां कहा सी कि जिहड़ा मेरा सिख है मैनू सीस की लोड़ है आके अपना सिर देवे। उस वेले सतगुरु पातशाह जी के हथ दे विच किरपान सी। उन्हां पंजां सिंघां दे सिरां तो बाद जाके खंडे बाटे की पौल तैयार हुई तो खालसा तैयार होया है। इसलिए सतगुरु पातशाह जी ने सानू देग दे नाल तेग दी भी दात दिती है। कलगीधर पातशाह जी दे बाबत तो गुरबिलास पातशाही 10वीं दे अंदर बचन आउंदे हन कि बिना तेग केसंग देहो ना दिदारे। जिस मनुख दे हथ दे विच शस्त्र नहीं है, जिस दे सिर ते केस नहीं हन, उसनूं कलगीधर पातशाह महाराज जी किरपा कर देन मैं दीदार नहीं देना, उसनूं मेरे दर्शन नहीं मिलणगे। बिना नरंग केसंग, बिना केस शस्त्र केसंग नरंग भेड़ जानो। बिना शस्त्रां तो बिना केसां तो जिहड़ा मनुख है
ਉਹ ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਭੇਡਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਮੁੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕੇਸ ਕਟਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੀ ਹੋਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੰਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਵੀ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਹੋਣਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ, ਦੇਗ ਅਤੇ ਤੇਗ, ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਰਤੀ ਬਣਾਂਗੇ, ਗ੍ਰਸਤੀ ਬਣਾਂਗੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਹੋਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਆਤਮ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੱਤ ਢੱਕ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪੱਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਜ਼ਤ ਉਹ ਰੁਲਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾਣ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਚਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਥਮੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਚਿਤ ਆਵੇ, ਚਿਤ ਆਵਨ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੇ। ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰੱਛਿਆ ਰਿਆਇਤ, ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ। ਸਾਡੀ ਦੇਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਤੇ ਤੇਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਦਾ ਫਤਿਹ ਹੋਵੇ। ਭਾਵ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਪਕੜ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਤੇ ਤੇਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਵੀ ਸਦਾ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਸਦਾ ਤਤਪਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਰਮਲ ਬਣਾਈਏ ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣੀਏ ਜੀ। ਹੋਈਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।